होप वी ऑल अंडरस्टैंड आज के सेशन में जो डिस्कशन रहने वाला है दैट वुड बी मोर ऑन रीजनिंग ओनली, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू फोकस अ बिट ऑन दैट कि हम लोगों को अगर रीजनिंग सेक्शन को देखना है तो हमें किस तरह से देखना चाहिए, हाउ टू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड ऑल दैट। सो थोड़ा बहुत आइडिया बेटे पहले आप लोगों से, अगेन एज यूजुअल आई विल एक्सपेक्ट कि थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या क्या करना चाहिए, कहाँ से कैसे प्रिपेयर करना है। सो फॉर ऑल ऑफ यू, कुछ लोग मुझे पुराने दिख रहे हैं, सो कैन यू ओके, अच्छा, वी ऑल अंडरस्टैंड बेटे, थोड़ा सा आज एनआरए के बारे में भी बात करूंगा। हाउ मेनी नोज अबाउट एनआरए बिफोर आई स्टार्ट टू रीजनिंग? हाउ मेनी अवेयर ऑफ द रीसेंट notification that is coming from the government point of view? How many aware of NRA? What is NRA? Guys, I hope I am audible. Guys, you are able to listen to me now? Good. Yes, we are talking about CET. We'll be talking about a common entrance test. So बेटा देखो, अभी तक की जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं चलूं तो अगर मैं अगले फाइनेंशियल ईयर की बात करूंगा, सो डेफिनेटली मुझे एनआरआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी पड़ेगी। सो जो कॉमन टॉपिक्स आने वाले हैं, जो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वुड प्रोबेबली वुड बी लुकिंग अप, द कॉमन टॉपिक्स वुड बी मोर ऑफ, हमारे पास जो पजल्स होगी वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, ठीक है। देन डेफिनेटली वी विल हैव ब्लड रिलेशंस। पजल्स में बेटे मैं सिटिंग अरेंजमेंट, बेसिक कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स की बात करूंगा, ठीक है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्शंस। बच्चे डिडक्टिव लॉजिक हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें हमारे पास assumptions, assertion reasons, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, whether it is CET or whether it's about the mains examination. Fine. Then definitely we'll have questions on alphanumerical series. We will be having questions on coding and all that. So जब हम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो बेटे पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड डेफिनेटली विल हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। परफेक्ट है, फाइन। अच्छा, नाउ you need to probably guide me a little bit. How many have done with the basics of reasoning and want to move ahead with the upper problems? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनको बेसिक्स कर चुके हैं? Because I want to see कि हम लोगों को लेवल ऑफ डिस्कशन करना है, so let's make it a little more interactive session. So I can understand Nishi has already done the basics of everything. ऐश्वर्या ने भी किया हुआ है. Komal also done the basics. आशना ने भी किया हुआ है. Because you need to tell me whether I should be moving with the basic of reasoning, understanding the basics of it, or you want me to address something beyond. आकाश ने भी किया हुआ है, so सबने basics किए हुए हैं यहाँ पे. Okay, that means the session would be for mix of people. Okay बेटे, चलो. मैंने बहुत ज्यादा frankly speaking आज के workshop के लिए would be dependent upon was not very clear of what kind of students that I'll be getting. So just as a small brush up of students who have not done something, so I understood Akash, Ashna and Aishwarya and Ishi probably have done that. I would definitely advise the people who have already gone through the basics of classes. We've already uploaded 3 of the sessions on high level reasoning that would be talking about high level puzzles, and then there'll be 2 further sessions on high level critical reasoning. The people who want to target further on them, kindly go and make sure that you attend those sessions, plus the sessions on deductive logic that would be talking about questions on possibilities. So we've already uploaded those on the aspiration accounts. I repeat, but in any case, you want a doubt solving session, you want us to move through any doubts and you want to take any more questions from me, you can talk to the Prabhat sir, you can talk to me. You can definitely will be coming up with the doubt sessions for you guys. Fine. So for all those who have not attended the basic classes, कुछ basics अभी बेटे थोड़े से repeat करने लगा हूँ. कुछ जल्दी से एक brush up सा करते हैं questions को लेके, ठीक है? जिन्होंने किया भी हुआ बेटे, let's have a small brush up of some basic things first.
जल्दी से मुझे आंसर करोगे. If I'll ask you this question in the English letter series, which letter is immediately followed by K? What would you say? A quick answer should probably take not more than 10 seconds. Specifically for people who have done basics. Komal says J. Okay. Rest all. Quick answer. Samriti L. Ashna says L. So got different answers now. निशी ने बेटे मुझे प्राइवेटली एक मैसेज भेजा है कि संडे को क्लास शेड्यूल नहीं दिख रहा है बेटा. निशी, we have already finished up your batch, so your schedule that way practically has been finished बच्चे. That is why you're not getting the class. ठीक है. हाँ, आपको अगर रिपीट क्लासेस लगाने, want to go through extra classes, you can let us know. We can have doubt solving classes, and definitely if you want to attend, we have new batches coming up on Saturday, Sunday as well as weekdays. Fine. So you can definitely go and attend that. ओके. अच्छा बेटे, बहुत लोगों को फिर से कंफ्यूजन है. मैं थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करने लगा हूं दोबारा. When it says the letter that is immediately followed by K, बेटे we all understand letter series में J, K, L, M, N है. अब जब मैं बोल रहा हूं the letter that is followed by K, फिर से ध्यान से देखो, the letter that is followed by K should be J. Most of you still give me an incorrect answer even though you have done your basics. I keep insisting on some basic words and we need to probably cram it now. Logically बेटे, जब मैं कहता हूं I am following somebody, सब मेरी बात को दोबारा सुनेंगे. तालिया, आपने भी बेटे कुछ बेसिक्स किए हुए. I have seen you so many in the classes. I have Aishwarya, Sukanya, Ashna, Samriti, not expecting from you guys बेटे. Logically समझो, जब मैं कहता हूं एक रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा से समझो बेसिक चीजों को. सपोज मैं कहता हूं कि किसी का रैंक 15th है and the rank that follows 15 or the number that follows 15, ये नंबर कौन सा होगा बच्चे? सब मुझे बताएंगे. the number that follows 15. सब कुछ बेसिक चीजों पे काम करेंगे. 16. गुड. आरती नहीं बच्चे. the number that follows 15 would be 16. नहीं समझी बच्चे. जब मैं कहता हूं मैं आई एम फॉलोइंग समबडी, तो मैं किसी के पीछे हूं. जब मैं किसी का पीछा करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? आई एम फॉलोइंग हिम और हर. फाइन. तो नंबर दैट फॉलोज 15 मींस 15 के बाद कौन सा नंबर होगा? हैज टू बी 16. बट द मोमेंट आई सेज द नंबर दैट इज फॉलोड बाय 15, मैंने बच्चे बहुत बारी आप लोगों को कुछ बेसिक वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन समझाई है. जब मैं वर्ड बाय ऐड कर देता हूं, सो द नंबर दैट इज फॉलोड बाय 15, ये कौन सा होना चाहिए? अगर वर्ड बाय ऐड हो गया 14th, हम बार बार भूल जाते हैं बच्चे. सो यहां पे भी ध्यान से देखो मैंने क्या किया था बच्चे. अगर मैं कहता द लेटर दैट इमीडिएटली फॉलोज के, so the letter that immediately follows K would be L. But what I asked was the letter that is followed by K. So बेटे मेरा आंसर क्या होना चाहिए था? J. Everybody is sure? हम बेसिक पॉइंट्स बेटे अड़ा रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं. So मैं दोबारा से एक ब्रश अप करवा रहा हूं. प्लीज उस पॉइंट को दोबारा से समझेंगे. अब मैं अगर आपको कहूं मेरे पास नॉर्मल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, और अगर मैं आपसे पूछता हूं नेचुरल नंबर्स में से द नंबर दैट इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 53, गिव मी क्विक आंसर. द नंबर that is immediately preceded by 53. Good everybody. Now everybody gave me the correct answer. I hope अब ये point दोबारा नहीं गलत होगा in any examination. ठीक है? So the number that precedes 53, जो 53 से पहले है वो 52 है, but क्योंकि मैंने word by add किया हुआ है, so I would say the number that is preceded by 53 would be 54. ठीक है? So जब मैंने यहाँ पे बोला था the letter that is immediately followed by K, so that has to be J. Everybody okay with it? A quick answer to this question now.
परफेक्ट आकाश, ठीक है बेटा। एक छोटा सा पॉइंट समझ, जब मेरे पास प्रीसीड फॉलोज का मतलब पता होता है, नहीं बेटे आकाश सॉरी आपने गलत लिख दिया। हाँ, प्रीसीड एंड फॉलोड बाय का मतलब बिफोर है, फॉलोज एंड प्रीसीड बाय का मतलब आफ्टर है। और बेटे जैसे मेरे पास अब यहाँ पे सक्सीड भी आ सकता है, सो सॉरी एक सेकंड बाकी लोगों के लिए, आकाश के लिए बेटे, आकाश बेटे इसका मतलब द नंबर दैट इज सक्सीडेड बाय अगर मैं लिख दूं, ठीक है, द नंबर दैट इज सक्सीड अगर वर्ड लिख दूं, तो द नंबर दैट इज सक्सीडेड बाय 53, इसका आंसर क्या होगा? एवरीबॉडी, द नंबर दैट इज सक्सीडेड बाय 53। गुड, समृद्धि फिर से गलती बच्चे, समृद्धि बेटे द नंबर दैट सक्सीड्स 53 दैट वुड बी 54। सक्सीड्स का मतलब बाद में है, सक्सीडेड बाय 53 का मतलब उसके बाद 53 होना चाहिए, तो नंबर क्या होना चाहिए? 52। इस चीज को बच्चे आई वुड से अपने दिमाग में क्लियर बिठा लो, बिकॉज जितनी अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन में प्रीसीड प्रोसीड वर्ड तो आ ही रहा है, फॉलोज वर्ड। हमारे पास बहुत सारे शेड्यूलिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, पजल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। सो गेट दिस आइडिया वेरी क्लियर नाउ, क्विकली डू दिस क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल वन। आई वांट अ क्विक आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू। Komal says Wednesday, Ankit says Wednesday. Rest all looking for your response. Good Aarti, good Aniket, good Ankit, good Ashna. So everybody is very clear. Fine. So मैं गलती नहीं करूंगा. I'm very clear. मुझे पता है बेटा मेरा बाहुबली कब था? थर्सडे को. If Three Idiots should be preceded by Bahubali, that means this Three Idiot has to be scheduled on Friday. Three Idiot should be preceded by Bahubali. So Three Idiot से पहले बाहुबली था, मतलब Three Idiot Friday था. And Lagan, 2 days before Three Idiots. So 2 days before Friday, my answer has to be Wednesday. Good enough. अच्छा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो. एक बेसिक सा ब्रश अप कर रहे हैं बेटे, बिल्कुल सिंपल लेवल ऑफ थिंग्स का. गुड समृद्धि एंड आकाश. सो बेसिक क्वेश्चन है बेटे, जब मैं कहता हूँ 16 प्लेसेस आफ्टर एफ, नाउ आई अंडरस्टैंड एफ हैज टू बी ऑन 6th प्लेस, और इससे जो 16 प्लेस आगे होगा बच्चे वो 22 होगा. दैट मींस माय राइट आंसर हैज टू बी बी. परफेक्ट है. अच्छा, अब जल्दी से एक और आंसर बताएंगे इसी इंग्लिश लेटर सीरीज में. हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन यू एंड जे? चलो जल्दी से आंसर करो. इन द इंग्लिश लेटर सीरीज, हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन यू एंड जे? समृद्धि says 10, आकाश says 11, कोमल 10. आकाश क्रॉस चेक योर आंसर बेटे. बच्चे मैंने वर्ड यूज क्या किया? बीच में. गुड दानिश. सो यू मेरा कौन सा है? 21st लेटर. जे मेरा कौन सा लेटर है? 10th लेटर. इनका जो डिफरेंस है वो सिग्निफाई करता है कि जो यू है वो जे से 11 प्लेसेस आगे है. अगर वो से 11 प्लेसेस आगे है तो उनके बीच में डेफिनेटली कितने होंगे? देयर हैज टू बी 10 बिटवीन देम. परफेक्ट, ठीक है. सो हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 23 एंड 75? कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस क्वेश्चन का आंसर करो. इन द इंग्लिश लेटर सीरीज व्हिच लेटर इज 20th फ्रॉम द लास्ट? गुड आकाश. रेस्ट ऑल. वेरी बेसिक.
actually was targeting something basic for this session because this was more on a basic class. ठीक है? So अगर मेरे पास कोई चीज पीछे से 20th है, so I would say there'll be 6 letters ahead of it. The letter that I'm expecting is the 7th letter, so that has to be my letter G. सबको क्लियर? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं, बहुत सिंपल है. इस क्वेश्चन को सब आंसर करेंगे. Everybody will look for this now. Nishi says 10, Komal says 9, Akash says 10. Rest all. So good Samriti, Akash and Nishi. ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल था. मुझे बेटे पहले आइडेंटिफाई करना है द लेटर दैट इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट. तो 7th फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा था? L. Then 9th फ्रॉम द राइट एंड 9th फ्रॉम द राइट एंड बेटे वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. परफेक्ट बच्चे. अब मुझे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा हुआ है कि इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स होंगे, बट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर. सो मुझे पता है मेरा ए जो है वो फर्स्ट लेटर है, एल जो है वो 12th लेटर है. अब बच्चा एक छोटी सी गलती कोमल ने जो की, बच्चे अगर ये ध्यान से देखूं तो 11 प्लेसेस दूर होगा. एल जो है वो ए से 11 प्लेसेस आगे है. What does that mean? उनके बीच में कितने होंगे? Has to be 10. What we need to work according to the English dictionary. डिक्शनरी के हिसाब से इनके बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए? So definitely there has to be 11 letters. Comfortable? Try this one. Rest all. Nishi says 1. Ankit says 2. Sukanya says 2. Acha. Komal says none of these. Komal, why none? How many should be there? Akash also says 2, so majority is saying 2. अच्छा बेटा, Danish says 4. एक चीज पहले बताओ, when it says we need to find out consonants which are immediately preceded by a consonant and followed by a number. इसका मतलब क्या है? Whether you wanted a consonant, a number, a consonant or a consonant, a consonant. पहले तो सिर्फ ये बताओ इनमें से क्या चाहिए आपको. Everybody try to identify this. दानिश बेटे आपने छोटी सी गलती की थी. आकाश है, निशी इज करेक्ट. बेटे देखो मुझे चाहिए क्या? आई वांटेड अ कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. मतलब कॉन्सोनेंट से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए और कॉन्सोनेंट के बाद नंबर होना चाहिए. कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय अ नंबर. प्लीज बेटे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना ये आइडेंटिफाई किया करो कि मेरा फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर क्या चाहिए. क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे कॉन्सोनेंट के बाद नंबर चाहिए. क्योंकि मुझे कॉन्सोनेंट के बाद नंबर चाहिए तो इट शुड बी CCN. कंफर्टेबल? सो मुझे देखने ऐसे कॉन्सोनेंट जिससे पहले भी कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद नंबर होना चाहिए. तो बेटा एक यहां से देखो ये FM6 है, ठीक है. एक सॉरी यहाँ पे QD8 था. 2 कॉन्सोनेंट्स और उसके बाद नंबर. बेटे मेरे पास ये 2 जगह था. दैट इज व्हाई द राइट आंसर हैज टू बी C.
ये क्वेश्चंस मार्क्स लूज करने वाले नहीं है बेटे. आई नीड टू बी वेरी क्लियर कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विच आर वेरी स्ट्रेट एंड इजी, सो इट शुड बी अ वेरी गुड अटेम्प्ट. तो जिनका भी गलत हुआ था, आई होप क्लियर. चलो एक और सिंपल सा ट्राई करते हैं. गुड कोमल, ट्राई दिस देन क्विकली. Quickly get me the answer. Akash, E for Y. How many should be there? Tell me the right answer. Nishi says there are two of them. Samriti also says two. Okay, just tell me one. When it says this, what should be the order that I'm looking for? Whether I'm looking for a number, a vowel, a consonant, or a number, a consonant, or a vowel. चाहिए क्या बेटे मुझे? Nishi says V and C. ध्यान से निशी. C and V. Perfect बेटे. ताल्या, कोमल, आशना giving me correct answer. निशी again बेटे आपसे expected नहीं है. Numbers that precedes a vowel. A number should precede a vowel and also should follow a consonant. समृति perfect बच्चे अब clear है. So मुझे C and V चाहिए. आशना को clear है. So करने बेटे आप देखो. I wanted a number that precedes a vowel. मतलब number जो है वो vowel से पहले है और consonant के बाद है. अब बताओ कितना आंसर होना चाहिए. कितने ऐसे नंबर हैं जिनसे पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में वाउल है. कोमल कौन से दो बेटे. ध्यान से देख. गुड आशना. 1. मेरे पास सिर्फ यहां पे है और कहीं ऐसा नहीं है जहां मेरे पास कॉन्सोनेंट, नंबर और वाउल हो. ठीक है. परफेक्ट समृति. मेरे पास सिर्फ M6 आए ऐसा था जहां पर मेरे पास एक नंबर है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट, अ नंबर एंड अ वाउल. तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, अब आप लोगों में से बहुत लोग मुझे पता है जिनका बेसिक्स डेवलप हो चुके हैं, बट सी वी नीड टू अंडरस्टैंड. पेपर में प्रेशर होता है. वी हैव टू गिव 30 seconds to a question like this. Need to be very quick in first understanding the basic language and formulating कि मुझे चाहिए क्या. whether I want a consonant, a number, a vowel, then a vowel, a number and a consonant. सबसे पहले उसका डिसीजन आना चाहिए बेटे 15 seconds में. उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है. देन वी हैव टू बी प्रोबेबली वेरी क्लियर बिकॉज ऑन स्क्रीन होने वाला है सब कुछ. ठीक है. उसको ध्यान से देख के करेंगे वुड बी एन इजियर जॉब. कंफर्टेबल बच्चे. फाइन. सो एज्यूमिंग ये पॉइंट क्लियर है. ठीक है. गुड. ये क्वेश्चन एज्यूम छोड़ रहा हूं, बहुत सिंपल था. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे मुझे. जस्ट गिव मी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 नाउ एवरीबॉडी. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं. आई एम वॉचिंग इट. ठीक है. ध्यान से देखो बेटे. इसका आंसर मुझे चाहिए. मैक्स ऑफ 3-4 मिनट्स वुड बी वेरी गुड टाइम.
I hope everybody trying it on. You just have to answer me the first question. Which of the following of floors would be vacant? Samriti got the answer B. Okay, Samriti. Rest all? Good, Sukanya. So can you type the rest of the answer, Samriti and Sukanya? Type whether it is B, A, or whether it is B, A, D, B, जो भी आपको अच्छा लगता है. So solve the answer. Give me all the 4 answers. Waiting for others to reply. क्या आंसर होने चाहिए बेटे इसके? अच्छा, just tell me one thing in the chat box. जब आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप कैसे फॉर्मेट करते हो? हाउ डू यू डिसाइड कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करना चाहिए? बिकॉज इस लेवल का क्वेश्चन तो आपको बेटे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसएससी कहीं भी दिखेगा. ठीक है, अगर मैं सीईटी की भी बात करूंगा तो आने वाले टाइम में बेटे आई डेफिनेटली वुड बी एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू अकर इन सीईटी बिकॉज दीस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. समृद्धि, टैबुलर फॉर्मेट आई वुड से शायद नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स ऐसी है नहीं बेटे जहां पर ये लिखा हो कि ए डेंटिस्ट नहीं हो सकता, बी बिजनेसमैन नहीं हो सकता. नॉट डिनाइंग कि उसके साथ हो जाएगा, बट इट इज मोर ऑफ एन अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन. वर्टिकल, गुड आरती. अब इसमें 2 चीजें मैं हमेशा फोकस करता हूं, उस पर ध्यान रखा करो बेटे. जब पेपर में बैठते हो ना और आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको फ्लोर्स की एलोकेशन करनी है, रूम्स की एलोकेशन करनी है, एक चीज हमेशा सबसे पहले ये देखा करो कि फोकस किस पे है. whether the floor numbers are important or whether it is the statements are given कि इससे इतने places ऊपर है, इतने places नीचे हैं. ध्यान से देखो तो यहां पर क्या मुझे बताया हुआ है कि कौन कौन सी फ्लोर नंबर पे होगा? डज इट एक्चुअली मेक सेंस कि मैं पहले से 10 फ्लोर्स लिखूं और फिर उसमें एलोकेशन करूं? शुड आई डू इट लाइक दिस, येस और नो? मुझे बेटे पहले से फ्लोर नंबर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? आरती सेज यस, समृति सेज यस, निशी आल्सो सेज यस. चलो, अगर मैं पहले फ्लोर नंबर्स लिख लेता हूं तो मैं कौन सी स्टेटमेंट से स्टार्ट करूं? अब अगर मैंने पहले से फ्लोर नंबर्स लिख लिए तो आपके हिसाब से मुझे कौन सी स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहिए? 6th फ्लोर वेकेंट है, चलो ये वेकेंट है. बिजनेसमैन निशी नहीं कर सकता. द बिजनेसमैन लिव्स ऑन द हाईएस्ट फ्लोर अमंग ऑल 5 पीपल, बट इट माइट हैपन दैट बिजनेसमैन इज लिविंग ऑन 8th फ्लोर and 9th and 10th are vacant, or businessman could be on 9th floor or could be on 10th floor. अभी के लिए बेटे श्योर नहीं है. अब उसके बाद क्या करूं? निशी 2 से भी ज्यादा बनानी पड़ेगी ना बेटे. वो 8th पे भी हो सकता है, वो 9th पे भी हो सकता है, 10th पे भी हो सकता है. तो एक छोटा सा आपको सजेशन दूंगा.
इस तरह के क्वेश्चन में पहले ये पढ़ा करो बेटे कि फ्लोर नंबर्स दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं। आइडियली बेटे इस क्वेश्चन में फ्लोर नंबर दिए ही नहीं हुए हैं। हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं फ्लोर नंबर पे फोकस करके। इस चीज को समझने की कोशिश करो बेटे। आप लोगों को फॉर्मेटिंग सीखनी है कि क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिया कैसा हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकली बेटर क्या है, मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये ज्यादा नहीं दिया हुआ था कि फ्लोर नंबर्स कौन सी थी। सिर्फ एक स्टेटमेंट थी कि 6th फ्लोर वेकेंट है और वेकेंट 5 फ्लोर्स है, इससे मैं कुछ निकाल नहीं पाऊंगा। तो आई वुड पर्सनली प्रेफर नॉट टू राइट फ्लोर नंबर्स इनिशियली। रादर मुझे क्या करना चाहिए, लिंक ढूंढना चाहिए कि डेंटिस्ट जो है वो डॉक्टर से 4 फ्लोर्स ऊपर है, फिर डेंटिस्ट सी से लिंक्ड है। ध्यान से देखूं तो आगे बेटे डॉक्टर लिव्स अबव बी दिया हुआ है, डॉक्टर बी से ऊपर होना चाहिए। लॉयर डेंटिस्ट से लिंक्ड है। तो मैं स्टेटमेंट्स को अगर आपस में लिंक करना चाहूं तो मैं पहले क्या कहूंगा, डेंटिस्ट लिव्स 4th फ्लोर अबव डॉक्टर। मैं फ्लोर नंबर्स ना लिख के कुछ ऐसा लिख लूंगा कि जो डेंटिस्ट है वो डॉक्टर से 4 फ्लोर्स ऊपर है। उनकी फ्लोर नंबर्स मुझे नहीं क्लियर है, लेकिन जहां भी डॉक्टर है उससे 4 फ्लोर्स ऊपर मेरे पास डेंटिस्ट होना चाहिए। डेंटिस्ट से 2 फ्लोर्स ऊपर मेरे पास सी होना चाहिए। और लॉयर जो है वो डेंटिस्ट के इमीडिएटली नीचे है। एंड डॉक्टर लिव्स अबव बी, तो बी कहीं नीचे होगा। अब मेरी बात को समझो बेटे, प्रैक्टिकली मुझे 5 लोग चाहिए थे। मैंने फ्लोर नंबर्स तो नहीं देखी, बट मुझे वो 5 लोग तो दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता सकता हूं कि इनमें से सी सबसे ऊपर होगा, फिर एक फ्लोर छोड़ के डेंटिस्ट है, इमीडिएटली नीचे लॉयर है, बीच में बेटे मेरे पास 2 फ्लोर्स हैं, डॉक्टर और फिर बी है। अब बिजनेसमैन लिव्स ऑन हाईएस्ट फ्लोर, तो बेटा जो सी होगा वो बिजनेसमैन होगा। And the separation between businessman and engineer is of 7 floors. So we can count 1, 2, 3, 4, 5, 6. बीच में एक और फ्लोर होगी और फिर बेटे बी की फ्लोर होगी, which has to be an engineer. तो जरूरी नहीं होता हमेशा हम फ्लोर नंबर्स लिख के ही काम करें. That might make my problem look little more tougher. इस चीज को समझने की कोशिश करो. में एक आदत होती है फ्लोर नंबर लिखने की. इस तरह के क्वेश्चन टफ बन जाते हैं जहां पर फ्लोर नंबर्स का रेफरेंसेस नहीं है. अब बेटा मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बिकॉज उसने फिर आगे कहा था डी डज नॉट हैव एनी इमीडिएट नेबर. सो ऑब्वियसली डी जो है वो डॉक्टर है और ई के ऊपर एक ही और होना चाहिए, तो ई डेंटिस्ट है. दैट मींस जो लॉयर है वो ए है. अब बस इतना से श्योर करना है कि मुझे 6th फ्लोर को वेकेंट करना है. तो अगर मैं काउंटिंग करूं तो अगर इसको 1 रख लूं तो 2, 3, 4, 5, 6 पे लॉयर आ जाएगा. दैट मींस बी फर्स्ट पे नहीं हो सकता, फर्स्ट वेकेंट होगी. और मैं इस तरह से अगर एलोकेशन कर लूं तो वी कैन अंडरस्टैंड मेरी 6th वेकेंट आ गई. सो आई कुड इजीली आंसर माय क्वेश्चन. Was hardly a 2 to 3 minute job provided I had the right format of the question. सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे बेटे. हमें आराम से 1 मिनट लगाकर क्वेश्चन को फॉर्मेट को समझना है बच्चा कि वो दे क्या रहा है. हम इसीलिए पेपर में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अननेसेसरी केसेस बना लेते हैं. गुड निशी. रेस्ट ऑल टेक अ पॉज, अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन बेटा. आई होप माय पॉइंट इज क्लियर. आकाश, आरती, आशना, आई होप आई एम कंफर्टेबल. गुड कोमल, गुड आरती, गुड बेटे, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन. चलो एक और छोटा सा पजल दे रहा हूं, जल्दी से ट्राई करेंगे. बिल्कुल सिंपल है, करके देखो इसको. वेरी सिंपल वन.
गुड कोमल, इस तरह के क्वेश्चंस को बेटे कैसे करना चाहिए? गुड स्पर्श, बिल्कुल अभी बेसिक लेवल के बेटे सीईटी में किस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गुड कोमल, टेबुलर फॉर्मेट बनाना चाहिए, ठीक है। गुड ऐश्वर्या, तो कुछ इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर लेंगे, तो सब कंप्लीट करेंगे बेटे क्वेश्चन को एंड लेट मी नो टेबल कंप्लीट हो रहा है। When you complete the table, let me know beta how many of you able to complete the table. But you have to tell me when you have completed the question. Good Nishi, good Samriti. So Nishi completed the whole table or still partially completed? Partially completed bete. Giving you 2 more minutes. Everybody try to complete the whole table. It is not a tough one at all बच्चा. So ध्यान से देखो कि स्टेटमेंट्स को पढ़ो, आइडेंटिफाई करो क्या दिया हुआ है, मुझे पूरा टेबल कंप्लीट करना है. I want to find everybody who has passed and failed in how many subjects.
अच्छा बेटे, मैं एक बार ही समझा रहा हूं। देखो, हम शायद कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ चीजें मिस कर रहे हैं। गुड आशना, मैं फिर भी एक बार बेटे देखो पूरा क्लियर करने लगा हूं। अगर मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ना है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है कौन किस में पास हो रहा है, कौन किस में फेल हो रहा है। ऑब्वियसली बेटे, अगर मैं इस ऐसे क्वेश्चन में खुद प्रेफर करता हूँ, आई प्रेफर पास के लिए टिक लगा लेते हैं, और जहां पे फेल हो रहा होगा उसको क्रॉस लगा लेंगे। अब पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ए हैज टू पास इन हिंदी, बी फेल्ड इन एसएसटी, सी पास इन मैथ्स, डी हैज टू पास इन साइंस, whereas E is the one who failed in English. ठीक है, सो बेटे यहां तक तो मुझे क्लियर, सॉरी, मुझे बच्चे यहां पे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ठीक है, गुड। अब बच्चे देखो आगे क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ्स। एक चीज क्लियर है, मैथ्स में बाकियों से कम होने चाहिए, एंड एग्जैक्टली 2 पास्ड इन हिंदी, whereas equal number of students, that is 3 passed in each of science and SST. अब बच्चे अगर मैं स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझूं तो मुझे पता है साइंस के नीचे भी मुझे 3 टिक्स चाहिए, एसएससी के नीचे भी मुझे 3 टिक्स चाहिए, और हिंदी में मुझे 2 चाहिए। अब मैथ्स में अगर मिनिमम है, सो वी कैन फिगर आउट मैथ्स में एक ही होना चाहिए। समृति, गुड बेटे। मैं बेटा एक बार ही कंप्लीट कर रहा हूं सबके लिए। सो पहला ये पॉइंट क्लियर है कि मैथ्स में क्योंकि मिनिमम थे तो हिंदी से तो कम नहीं होंगे, दैट मीन्स मैथ्स में तो एक ही होना चाहिए था। अब क्योंकि मैथ्स में एक ही होना चाहिए तो आई कुड आइडेंटिफाई रेस्ट ऑल हैज टू फेल इन मैथ्स। फाइन। अब हमने ये चारों स्टेटमेंट्स तो कर ली, बट इन चारों स्टेटमेंट से मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता लग रहा है। इट स्टिल लुक्स इनकम्प्लीट। तो मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगा। इट सेज one of them passed in all these subjects. Can you quickly identify the one who passed in all? Perfect है ना? तो ये सबको अब दिख रहा है। The one who passed in all has to be C. तो मैक्सिमम 3 मिनट्स लगते हैं बच्चे, बट पेशेंटली उसको पढ़ो ध्यान से। अब इससे फायदा क्या हुआ, हिंदी के दोनों मिल गए। गुड निशी, हिंदी के अगर दोनों मिल गए तो बेटे मैं कह सकता हूं कि बाकी सब हिंदी में फेल होंगे, क्योंकि हिंदी में तो 2 ही पास होने चाहिए थे, तो मुझे वो 2 मिल गए, बाकी सब हिंदी में फेल होंगे। Then it says one failed in all. कोई एक है जो सब में फेल हो रहा है, वो बी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। कोई ऐसा है जो एक ही में पास हो रहा है, वो एक ही में पास कोई भी हो सकता है एक्सेप्ट फॉर सी। But then it is important, one of them failed in exactly one subject. सब मुझे हेल्प करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। The one who failed in exactly one, कौन होगा? बेटे गुड, the one who failed in exactly one has to be A. ये बात सबको क्लियर? गुड। अब ये एक ही में फेल है तो बेटे ये बाकी सब में पास होगा, ये भी सबको क्लियर हो गया। तो ए 4 सब्जेक्ट्स में पास है और सी 5 सब्जेक्ट्स में पास है। अब ध्यान से देखो तो बच्चे मुझे साइंस के तीनों मिल गए। आई वांटेड 3 पीपल टू पास इन साइंस, और मुझे टेबल में 3 कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं क्या कहूंगा बच्चे, बाकी सबका साइंस में फेल होना जरूरी है। आई होप ये क्लियर हो गया। परफेक्ट। अब बच्चे वो क्या कह रहा था, एवरीबॉडी ओके? गुड। अब मुझे ध्यान से देखो तो मैंने जो छोड़ा हुआ है, वन फेल्ड इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स, कोई एक है जो सब में फेल हो रहा है, ठीक है। वन पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट एंड द अदर 2 पास्ड इन 2 सब्जेक्ट्स ईच। अब बेटे ध्यान से देखो तो 2-2 सब्जेक्ट्स में कौन कौन पास हो सकते हैं। ध्यान से डाटा को देख के बताओ, कोई ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट्स में पास होंगे, वो 2 ऐसे कौन से हैं? परफेक्ट, डी एंड एफ, क्योंकि बी के पास भी एक ही रह गया और ई के पास भी एक ही रह गया है, तो बी वुड बी द वन हु पास्ड इन 2 as well as f has to be the one who passed in 2. परफेक्ट। अब f अगर दोनों में पास हो रहा है तो यहाँ पे दोनों टिक आ जाएंगे। सॉरी, बी नहीं होना था, सॉरी, इट हैज टू बी डी एंड f who has to pass in 2.
ठीक है। अब क्योंकि F के 2 पूरे हो गए तो बेटा यहां से साइंस के 3 पूरे हो गए, इसका मतलब D और E साइंस में पास नहीं है, तो E के सारे क्रॉसेस आ गए, मतलब E वुड बी द वन हु पास्ड इन नन ऑफ दीस सब्जेक्ट्स। D के 2 पूरे करने थे, वो इंग्लिश में पास होगा। अब जो बच गया है उसने एक ही सब्जेक्ट में पास होना है, वो B है, so B has to be one who passed in English. Everybody try to have a look at the question. सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में इंपॉर्टेंट आपकी कंट्रोल ऑन नर्व्स है सबसे पहले बच्चा, प्लीज इस चीज को डेवलप करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि पहले 1 मिनट शुड बी स्पेंडिंग ऑन आइडेंटिफाइंग उसका टाइप क्या है, हमें उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। देन another 2 to 4 minutes depending on difficulty level, keep control on your nerves, patience से पढ़ो हर लाइन को और आइडेंटिफाई करो कि मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए, एंड देन कीप हंटिंग कि यार हमने कौन सी चीज अभी तक यूज नहीं की थी, डेफिनेटली उसमें से कुछ निकल रहा होगा, वो ढूंढने की आदत डालनी है बेटा। देखो सबको इजी लगा, बहुत मुश्किल नहीं था। गॉट दिस पॉइंट बेटा? गुड समृति, चलो गुड। लेट्स हैव अनदर पजल, कुछ और समझते हैं। एक सेकंड रुको, सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो, इट्स अ डिफिकल्ट वन, सो एवरीबॉडी वुड ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आराम से फॉर्मेट बनाओ, इज नॉट इजी एट ऑल, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ो, समझो क्या क्या दिया हुआ है। टेक 5 मिनट्स। एवरीबॉडी हैज टू कीप पेशेंस, ठीक है। ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ के पहले ढूंढो कि हमें फॉर्मेट कैसे करना है, कौन सी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई दोस 3-4 स्टेटमेंट्स इनिशियली जो आपको लगता है अननेसेसरी केसेस नहीं बनाएंगे, ठीक है। डोंट गेट इनटू राइटिंग अननेसेसरी थिंग्स व्हिच प्रोबेबली गिव्स 4-5 केसेस। सोचो समझो कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इससे स्टार्ट किया जा सकता है क्वेश्चन को। गुड कोमल।
अच्छा चलो, मुझे बताओ पहले तो इसमें फ्लोर नंबर लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए? सिर्फ इस बात का जवाब दो, आपको क्या लगता है ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? यस, परफेक्ट। आरती नहीं बेटे, इस बार मैं प्रेफर करूंगा लिखना, बिकॉज बेटे देख ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं है कि ये इससे 2 फ्लोर्स ऊपर है, ये इससे 4 फ्लोर्स नीचे है। मोर और लेस जो रेफरेंस है वो फ्लोर नंबर का है बेटे। कहां कहां पे फ्लोर नंबर्स की बात हो रही है देखो, एक तो दिया हुआ है जी लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, then definitely perfect Simran, Samriti sorry, he lives on 7th floor and there has to be 3 floors between one whose age is 25 and E. तो इससे बेटे 25 वाले का भी फ्लोर नंबर आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, H lives on a floor above G and his age is square of his floor number. B lives on topmost floor, ठीक है। C also lives on an even number floor। तो काफी सारी चीजें जो है बेटे वो फ्लोर नंबर की रेफरेंस में हैं। सो आई वुड पर्सनली प्रेफर कि ऐसे क्वेश्चंस में पहले फ्लोर नंबर लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि फ्लोर नंबर की रेफरेंसेस में दिया हुआ है, एक हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे जब क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो तो H जो है उसका जो एज है वो स्क्वायर ऑफ हिज फ्लोर नंबर है। ध्यान से बता सकते हो H के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? बेटा एक एज के लिए इनिशियली दिखती है 4 और उसकी एज 16 होनी चाहिए। 5 है और उसकी एज 25 होनी चाहिए। 8 वाले की एज 64 होनी चाहिए। ये बात तो क्लियर है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें से सुकन्या ने 5 नहीं लिया और निशी कहती है 80 होनी चाहिए। निशी कैसे 8 होना चाहिए बेटे? पहले 5 क्यों नहीं हो सकता? 5 हो सकता है कि नहीं हो सकता, और क्यों? एनीबडी? ओके, अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते हैं, इकट्ठे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे लिखवाओ, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले क्या लिखूं? आप जो आप लोग कहोगे वही करेंगे। सबसे पहले ई लिख लेते हैं, परफेक्ट है। सो ई हैज टू बी ऑन विच फ्लोर? ई हैज टू बी ऑन 7th फ्लोर, perfect। And the one whose age is 25, there has to be 3 floors between, तो जिसकी एज 25 है वो यहां पे होगा। कोमल 6th फ्लोर वेकेंट कहीं नहीं दी हुई बेटे, तो अभी के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है ना, 6th वेकेंट ऐसा तो कहीं नहीं कहा हुआ, ठीक है। अब मैंने एच के लिए 3 पॉसिबिलिटीज आपने कहा, या तो वो 4th फ्लोर पे और उसकी एज 16 है, 5 फ्लोर पे है तो उसकी एज 25 है, और अगर 8th फ्लोर पे है तो 64 है। अब मुझे सोच के बताओ ये 5 वाला पॉसिबल है कि नहीं है? ध्यान से सब देखेंगे, इज इट अ पॉसिबिलिटी विद एच? नो, क्योंकि हम ऑलरेडी 25 यहां यूज कर चुके हैं, तो ये पॉसिबल केस नहीं रहा। ये बात क्लियर है बेटे सबको? सो पेशेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। अब देखो, अगर एच की एज 16 है तो अब सब इस स्टेटमेंट को समझेंगे। उसने दिया हुआ था एच के बारे में, difference of C's age and H's age is equals to A's floor number। अब मेरे को बताओ, अगर H की एज 16 दे दूं तो C की एज क्या रखूं ताकि A का फ्लोर नंबर आ जाए? एक बेटा लास्ट में क्लियर था कि जो B है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे है। अब मुझे इस स्टेटमेंट को सब इंटरप्रेट करके बताएंगे कि अगर H की एज मैंने 16 रख ली तो C की एज क्या रखूं ताकि A का फ्लोर नंबर आ जाए? Is it possible to keep H at the age of 16? नहीं, गुड कोमल, 80 होना चाहिए। देखो बेटे, अगर मैं H की एज को 16 रख देता हूं तो C की नियरेस्ट पॉसिबल एज 25 है, डिफरेंस 9 होगा।
और 9 ए का फ्लोर नंबर होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेटे हमने ऑलरेडी 9th फ्लोर पे बी को रख दिया। सब इस पॉइंट को समझेंगे तो बेटा ये वाला जो केस है ये यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट है। तो काफी बारी नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे बेटे, थोड़ा सा नंबर्स को सोचना था। तो H16 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब H 8th फ्लोर पे होगा और उसकी एज 64 होगी। और ध्यान से देखो बेटे, अगर H की एज 64 है तो C की एज क्या रखूं ताकि मेरे पास A का फ्लोर नंबर आ जाए, सब बताएंगे। अगर मैंने H की एज 64 रख ली तो C की क्या एज रखूं ताकि मेरे पास A का फ्लोर नंबर आए। लुक एट द एजेस एंड लेट मी नो। आरती बेटे 33 थोड़ी ना हो सकता है, अगर 64 और 33 में तो गैप 31 का आ जाएगा, A का फ्लोर नंबर 31 नहीं हो सकता। ध्यान से पढ़ो, C और H का जो डिफरेंस है, कोमल ध्यान से पढ़ बच्चे, H की एज और C की एज में जो डिफरेंस है वो A का फ्लोर नंबर है। समृति बेटे अगर मैं C को 50 एज दे दूं तो A का फ्लोर नंबर 16 हो जाएगा, और 16 तो फ्लोर है ही नहीं हमारे पास। ये 67 आप भूल रहे हो, यहाँ पे एक 67 भी है। परफेक्ट। आशनेश्वर्या क्लियर है बेटे, मेरी बात को समझो। इन H और C में जो डिफरेंस लेना है एज में, वो A का फ्लोर नंबर होना चाहिए। तो 64 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है जो 1 से लेके 9 तक का डिफरेंस दे। इस क्वेश्चन में यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था बस। तो हमें आइडेंटिफाई करना था कि H 64 का है और C 67 का है, ताकि A का जो फ्लोर नंबर है वो 23rd आ जाए। देखो बेटे पॉइंट समझ आया सबको? आई होप बेटे क्लियर है। गुड, परफेक्ट बच्चे, ठीक है। अब मेरे को एक और चीज समझाओगे। उसने कहा हुआ है G इवन नंबर फ्लोर पे है, C भी इवन नंबर फ्लोर पे है, लेकिन A के नीचे नहीं है। जो G है वो भी बेटा A 25 से ऊपर है, C भी इससे ऊपर होना चाहिए, और दोनों इवन नंबर पे हैं। तो मुझे बताओगे बेटे C और G कहां कहां हो सकते हैं? C और G दोनों इवन नंबर फ्लोर्स पे हैं। गुड बेटे, तो मैं क्या कहूंगा, C और G जो है वो मेरे पास 4 या 6 पे ही होंगे। परफेक्ट, ठीक है। अब मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट देखो, इससे क्या समझ आता है? कुछ दिख रहा है? F lives immediately above D। जल्दी से अरेंजमेंट में देख के बताओ, F lives immediately above D कहां कहां होने चाहिए बेटे? आप देख सकते हो, आपको दिखेगा। If F has to live immediately above D, F और D इकट्ठे होने चाहिए, तो F lives immediately above D कहां आने चाहिए? ध्यान से देखो जो पॉसिबल एलोकेशन है। गुड आशना बेटा, बाकी सब तो भर गए ना, इकट्ठी पोजीशंस दो ही पॉसिबल हैं। सो F और D जो है बेटे वो कहां होंगे? सेकंड और 1 पे, F has to live immediately above D। और D की एज एक प्राइम नंबर होनी चाहिए। ध्यान से देखो बेटे, जितने भी एलोकेशन है उसमें 47 और 67 ही प्राइम थी। 67 आप ऑलरेडी C को दे चुके हो, तो D के पास जो एज आ जाएगी वो 47 आ जाएगी। सो हमने 47 भी एलोकेट कर दिया, 64 भी एलोकेट कर दिया, 25 एलोकेट कर दिया, ठीक है। और बेटे मैंने C को 67 एलोकेट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये फ्लोर जो है वेकेंट फ्लोर, वो कौन सी हो जाएगी? 5th फ्लोर। अब उसने लिखा हुआ था वेकेंट फ्लोर के बारे में, बेटे C lives on one of the floors above the vacant floor। ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटे जो कहा हुआ उसने C lives on one of the floors above the vacant floor, तो C कहाँ होना चाहिए बच्चे? C का फ्लोर नंबर 6। कंफर्टेबल?
जो सी का फ्लोर नंबर है बेटे वो 6th हो जाएगा एवरीबॉडी। ओके, तो मेरे पास जो जी होगा वो कहां पे होगा? 4th फ्लोर पे। और सी की एज कितनी है? 67। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? अब एक क्लास स्टेटमेंट बताओ, ए इज ओल्डर देन एफ। ए अगर 25 का है तो एफ कितने का होगा? ए इज ओल्डर देन एफ। गुड बेटे, 16। 25 से छोटा सिर्फ 16 है, तो ए इज ओल्डर देन एफ मींस ए हैज टू बी 16। अब जो बी, ई और जी बचे हुए हैं, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देख के बताओ। बेटे E's age is greater than B but less than G। हमने 16 भी एलोकेट कर दिया, 25 ये सारे एलोकेट कर दिए। जो तीन बचे हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा बेटे 50, 33 और 27। सो ऑब्वियसली क्लियर हो गया ना? E is greater than B but less than G। नहीं बेटे, आज ना B 50 नहीं है, ध्यान से देख। E is greater than B but less than G। ध्यान से देखो बच्चा, E is greater than B but less than G। तो जो बच गए 27, 33 और 50, इसमें से 50 किसके पास होगा? परफेक्ट, B has to be 27। उसके बाद E would be 33 and G has to be 50। तो हमें पता है बच्चे, हम लोग जब मेंस में जाएंगे तो हमारे पास इस लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, थोड़ी सी आदत डालनी है फॉर्मेटिंग ऑफ क्वेश्चंस की, प्लस साथ में ये देखना है कि अगर उसमें नंबर्स मिक्स हो रहे हैं तो बहुत पेशेंटली आपको वो नंबर्स वॉच करने हैं। कहाँ किस नंबर को कैसे यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे आंसर्स कैसे निकल सकते हैं। एक सजेशन दूंगा फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट अटेंडेड द क्लासेस, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 क्लासेस ऑफ एचएलआर हाई लेवल रीजनिंग के नाम से। ठीक है, जिसमें पजल्स हैं। So almost this, including class and home exercise, is a practice of almost 180 200 questions over there. Plus you have your e-books with you। जो लोग CL के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग नहीं है, kindly look forward for the right material and make sure बेटे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो। आपकी जो बुक्स हैं उसमें there are ample number of questions that would be formatting these kind of questions। ठीक है, अगर आप लोग स्पेसिफिकली बैंकिंग इंश्योरेंस को देख रहे हो तो this level of puzzles is a must for you। Kindly make sure that you practice this a lot, and in case of any doubts, definitely most welcome, you can definitely coordinate with us and come with the doubts। Perfect है बच्चे? I hope the point is clear। Fine, ठीक है बेटा। So would not be doing many more puzzles now। I expect the purpose is clear। I am not here practically to if you want me to do any particular type and other ways, definitely I can do that। ठीक है, but definitely look forward for good material। make sure that you appropriately practice it and एक होल्ड बनाओ बच्चा क्वेश्चंस को लेके कि हाँ ये टाइप है, इसमें ये पर्टिकुलर चीज पूछी गई है, उसका ये फॉर्मेट होना चाहिए। your decision should come in a minute, first to identify that arrangement and then look forward for the statements with patience। Fine, anything else that you want me particularly to do in this class? Any particular type of question that you want me to handle? Nishi, can you type the same message for the common chat so that I can answer it to everybody? Anybody else with a doubt, bache, please, you can always talk to me। Samriti, I'll do that, just give me a second। Chal bete, let's do this question। This is a question on inside and outside। ठीक है, so Samriti has some doubts in sitting arrangements। ठीक है, sitting Samriti inside outside वाले में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि बेसिक में बेटे? This is a question on inside and outside। If you want me to do some basic also, I can do that also।
अच्छा समृति, मुझे एक बात बस बता दे बच्चे, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस एंड एवरीबॉडी एल्स, व्हेन आई एम सेइंग somebody is facing inside, जो राइट होता है वो किस तरफ होता है? हाँ निशी, मैं आप पे आ रहा हूँ बेटे, 2 मिनट में इसको हैंडल कर रहा हूँ अभी। अच्छा समृति बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना दूं, अच्छा परफेक्ट, अब मुझे एक चीज बताओगे, इस अरेंजमेंट में हु वुड बी इमीडिएट राइट ऑफ ए? जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी, हु वुड बी इमीडिएट राइट ऑफ ए इन दिस अरेंजमेंट इफ ए इज फेसिंग इनसाइड? बी। गुड है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं सी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो बेटे सी का इमीडिएट राइट कौन होगा? परफेक्ट है, ठीक है। तो जो इनसाइड फेस करते हैं उनका राइट गोज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, और वहीं जो आउटसाइड फेस कर रहे हैं उनका राइट हैज टू गो क्लॉकवाइज। ये क्लैरिटी है, परफेक्ट है। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन द मीनवाइल मैं निशी का आंसर कर रहा हूं। निशी बेटे, टाइम एंड वर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बच्चे। देखो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस होते हैं, मोर और लेस इनिशियली अगर मैं देखूं, इफ आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट पीओ मेंस, 90% बेटे जो हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है वो 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट, जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं विद इन सेट ऑफ पीपल, 2, 3 और 4 पीपल हु कैन कंप्लीट अ वर्क इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। बच्चे, माय पर्सनल सजेशन वुड बी ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एलसीएम अप्रोच से ही करना, एज्यूमिंग द टोटल वर्क। अगर मैं बेटे इस क्वेश्चन को इतना समझ लूं कि अगर मैं क्वेश्चन को वर्क और एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो जितने भी इंडिविजुअल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, दैट साउंड्स ऑलवेज वेरी सिंपल, फाइन। सो उस केस में बेटर ये है कि आप पहले तो आइडेंटिफाई फिर से करो कि वो 3 टाइप्स हैं कौन सी। सेकेंड टाइप जो मुझे उसमें दिख रही है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग सम जॉब। हम उसे चेन रूल के क्वेश्चंस बोल सकते हैं, हम उसमें टोटल वर्क लगा सकते हैं बेटे, नंबर ऑफ डेज इनटू आवर्स इनटू नंबर ऑफ पीपल। और थर्ड मेरे पास जो दिख रहे हैं वो फिर से पाइप्स एंड सिस्टम्स है, व्हिच आर मोर और लेस लाइक इंडिविजुअल पीपल वर्किंग ऑन देम, फाइन। सो ध्यान से देखा जाए तो टाइम एंड वर्क फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होता बच्चा। मैं फिर बोल सकता हूं कि आप ऐसा कर सकते हो कि एक डाउट सॉल्विंग क्लास प्रभात सर से रिक्वेस्ट करके बेटे रखवा सकते हो, और उससे पहले अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही डिस्कस करने हैं तो यू कैन शेयर इट विद मी, यू कैन टॉक टू प्रभात सर, ठीक है, और उनसे क्वेश्चन शेयर कर सकते हो या प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और फिर मेरे साथ एक लाइव क्लास हो जाएगी, एंड आई डेफिनेटली वुड हेल्प यू हैंडल ऑल द क्वेश्चंस इन अ बेटर वे, कि हम टफर क्वेश्चंस को भी कैसे करें। स्पर्श, आर यू एन एनरोल्ड स्टूडेंट विद कर लॉन्चर और नॉट? स्पर्श बेटे, अगर आप एनरोल्ड हो ना, तो हाई लेवल रीजनिंग की कुछ वीडियोस हैं, आप प्रभात सर से एक बार डिस्कस कर लेना। अगर आपके बेटे बैच में हो गई होंगी, आई डोंट नो। समृद्धि बेटे, सी इफ यू आर अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, probably a BTech student or a BCom humanities or commerce background student? Samriti, which background? BCom honors. देख समृति बेटे, to be very true, if you are a second year student, try to focus more on basic fundamentals first. Fine, because when you are a second year student right now, you are not eligible probably for any examination. So उस केस में बेटर ये है, देखो I don't know what kind of college you are into, but probably I personally believe BCom honors wale students are not that busy that you cannot take approximately like an hour or two on daily basis. When preparing for your government examination, specifically, you're not in the need of probably preparing for an examination in a month or so. You have sufficient time. So एक थोड़ा सा अपना schedule ऐसा बनाओ that you are giving almost like 2.5 hours on a regular basis for your preparations.
You can always divide your week into, okay, Calcutta University, Samriddhi, perfect. So बेटे Calcutta University का जितना मैं जानता हूँ, आपका 5 days वर्किंग ही होता है, आई सपोज सैटरडे संडे आप रिलेटिवली फ्री रहते हो, ठीक है? सो व्हाट डज दैट मीन्स, आपके केस में बेटे देखो, आपको जो करना चाहिए, रूटीन में सारे सब्जेक्ट्स को फोकस मत करो, जस्ट मेक श्योर कि आप हाफ एन आवर टू 1 आवर दे रहे हो सिर्फ अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को, अपना एक बेसिक इंटेलेक्ट टुवर्ड्स रीडिंग एंड जर्नल अवेयरनेस डेवलप करना है, ठीक है? स्पर्श यू आल्सो बेटे, इफ यू आर बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट, जितने भी प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि अभी के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड मत करो. इट इज नॉट दैट यू आर इन अ स्ट्रेट नीड ऑफ क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन प्रॉब्ली इन 2 months और 3 months. आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है. उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेसिक इंटेलेक्ट पहले डेवलप करने की बात कर रहे हो. आपके 4 सेक्शंस हैं, जिसमें से जीके और इंग्लिश को लेकर अभी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन मत करो, सिर्फ रीडिंग हैबिट्स को इंप्रूव करो. And probably when you're devoting almost like 1 hour for newspaper, and that should be a good newspaper, I personally would always prefer reading Hindu or Indian Express. And that too, when I'm saying Indian Express and Hindu, my focus should be on reading editorials. Because maximum जो current awareness हमारी prepare होती है, journal awareness prepare होती है, I'm not talking about GK, facts, because facts change हो जाएंगे जब तक आप लोगों ने पेपर देने हैं. हमें अपना awareness prepare करना है. उसमें जो एडिटोरियल पेज है, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन 3 or 4 एडिटोरियल्स फ्रॉम दैट एडिटोरियल पेज. कौन सी फील्ड में क्या चल रहा है, लोगों का उसके बारे में ओपिनियन क्या है, वो करना है. प्लस उसमें से बेटे हमें अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है. तो एक थोड़ा सा अपना नॉर्म क्रिएट करो कि जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो एवरी डे यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई दोस 7-8 डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम दैट and then probably write it on a paper, on a book or a register, whatever you feel like. उसके अलावा हफ्ते में कोई 2 या 3 दिन अपनी रीजनिंग को दो, and 2 to 3 days to quantitative ability. And when I'm saying quantitative ability, probably just try to complete 1 chapter once a week or even fortnight. उससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है बच्चे. Jack of all trades never work in the examination. It is like we have to become master of few. तो अगर मैं सपोज डिसाइड करता हूं कि मुझे परसेंटेजेस प्रिपेयर करना है, आइडियल मेथड वुड बी कि मैं पहले परसेंटेज की क्लास लगाऊंगा. बिकॉज अगर बच्चे में कोई भी टॉपिक किसी से गाइडेंस के बिना कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमें शॉर्टकट्स ट्रिक्स समझ ही नहीं आती है. हम एक रैंडम डायरेक्शन में जा रहे हैं विदाउट अ प्रॉपर गाइड ऑन इट. सो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एक राइट गाइड, एक राइट मेंटोर देखो बेटे, जहां से आप राइट मेथड सीख सको कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए, हाँ यार ये पर्टिकुलर चीजें हैं. लेट्स से अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस करना है, तो बहुत सारे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है. आपने पजल्स करनी है, तो उसमें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो हमें समझने हैं. So please, before you prepare a chapter, watch these videos very clearly. Attend classes. फिर उसमें से नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप एक क्लास एक लगा रहे हो तो आप इन अ वे 25-30 क्वेश्चंस कर रहे हो. तो अगर एक टॉपिक की 3 क्लासेस लगा रहे हो, प्रैक्टिकली प्रिपेयरिंग 100 क्वेश्चंस. मेक श्योर बिफोर ट्राइंग ऑन योर ओन, पहले वो 100 क्वेश्चंस या 80 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चंस ध्यान से समझो. And try to figure out those important 10 to 20 key points in every chapter जो आपको लगता है याद करने सबसे जरूरी है. उसके लिए बड़े साफ सुथरे क्लियर नोट्स क्रिएट करो अपनी लैंग्वेज में. Because when you prepare it in your own language, probably your recall value is going to be very high. You're not going to forget that for lifetime. That should be my first job, key notes बनाने का. फिर जब मैंने वो की नोट्स बना लिए, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा फ्रॉम e-books or from other books, whatever material that you want to follow, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि जो मैंने प्रिपेयर किया मैं उसको अप्लाई करना सीख पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. That should be my second process. इसके लिए मुझे कम से कम 15 दिन लग जाते हैं बेटे एक चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए. फॉर दोज पीपल हु आर नॉट इन एन अटर नीड ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन, जो भी फाइनल ईयर ग्रेजुएटेड नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो 15 दिन लेके मैंने वो चैप्टर प्रिपेयर करना है. इस तरह से मैं अपना एक मॉड्यूल प्रिपेयर करूंगा, एंड आई वुड ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मेरे पास
ऑलमोस्ट लाइक 60 बोल दिया, 30-35 वीक्स है, बिकॉज अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे ऑलमोस्ट 12 to 14 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो अगर मैं 2-2 हफ्ते भी लगा के कर रहा हूँ एक क्वांट के चैप्टर को, तो मेरा 30 वीक्स में 6 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है, 7 मंथ्स, गुड इनफ फॉर मी, परफेक्ट है। सो प्रेशर बिल्ड करने से कुछ नहीं होगा। दैट शुड बी माय स्ट्रैटेजी फॉर फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु आर नॉट एलिजिबल राइट नाउ फॉर द एग्जामिनेशन। जब मुझे लगता है कि 6-7 मंथ्स डाउन द लाइन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है या मैं प्रिपेयर हूं, देन योर नेक्स्ट स्टेप वुड कम टेकिंग मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है बच्चे? So that should probably be your way of moving ahead. Let's not create pressure. Sparshan Samriti for you guys. बेटा एक सेकेंड, आई मिस्ड अप योर मैसेज, सो सॉरी बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर ये सैटरडे संडे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने नए बैच हैं और sorry guys, I got disconnected. I hope I'm audible. तो तालिया बच्चे, I hope the point is very clear बच्चे। आप लोग उसमें सारे सेशंस कवर कर सकते हो, ठीक है? So we'll be giving all the covering classes to each of you बच्चे for that. तालिया, hope it's okay बेटा? पहले बेटे मैं रिपीट कर रहा हूँ योर क्यूरी। जो बेटे सैटरडे संडे है, आपने जितने भी सेशन मिस किए हैं, डेफिनेटली वी आर देयर फॉर यू गाइस, ठीक है? विल बी कवरिंग अप ऑल द सेशंस वंस अगेन, सो मेक श्योर दैट यू कीप अटेंडिंग ऑल द सेशंस फॉर हैव अ ग्रेटर क्लैरिटी टुवर्ड्स थिंग्स। ओके गाइस, अच्छा बच्चे, sorry for the things like I probably have crossed the time. I have another session, so sorry, so I'll have to log it by now. Good bit, Nishi has already solved the answer. So I'll just quickly go through this question and probably will solve this, and definitely would be coming up with more things. Akash, good bete. चलो मैं एक बार इसको फटाफट करवा देता हूँ because I'll have to leave after that. Guys, so sorry, there's some problem with the ओके बेटे, तो एक बार चलो इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, अगर किसको भी डाउट था। अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटे इस प्रॉब्लम में मेरे पास क्या दिया हुआ था, पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे हमारे इनसाइड आउटसाइड कैसे हैं। काफी लोगों का आंसर वैसे आ गया था, गुड इनफ। देखो बच्चे, मेरे को दिया हुआ है ई फेसेस आउटसाइड एंड बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस इनसाइड। H sits second to the right of E and B sits third to the left of E. तो अगर मैं E को यहां ले लूं तो E का फेस आउटसाइड है, उसके नेबर्स जो हैं बच्चे वो इनसाइड देख रहे हैं। H sits second to the right of E, जो आउटसाइड है उसका राइट इस तरफ होगा, एंड B sits third to the left of E, बेटे B इधर होना चाहिए, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या थी, B सेंटर में फेस कर रहा है और उसके इमीडिएट आउटसाइड फेस कर रहे हैं। फिलहाल D कहीं भी हो सकता है,
फिर वो जी और ए की बात कर रहा है। फिर ये स्टेटमेंट क्लियर थी, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अब ये बेटे एच का राइट कब होगा? जब एच आउटसाइड देखेगा। तो मैं ये भी क्लियर हो गया कि एच ऑल्सो हैज टू फेस आउटसाइड। अब ध्यान से देखो तो वो कह रहे हैं एफ डी के साथ होना चाहिए, और डी जो है वो बी का नेबर नहीं है और बी आउटसाइड है। तो लॉजिकली बेटे देखो डी इन दो पोजीशंस पे नहीं आ सकता, डी यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि एफ उसका नेबर है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो डी यहां होगा और एफ यहां होगा, या फिर बेटे मैं एक सेकंड पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता हूं कि मेरे पास अगर यहां पे बी था तो जो डी और एफ है वो नीचे वाली पोजीशंस पे भी आ सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि मेरे पास बेटे यहाँ पे डी नहीं हो सकता था, यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे एफ है। ये पक्का इनसाइड देख रहा है, ये पक्का इनसाइड देख रहा है, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है। परफेक्ट है। अब मुझे सी और जी नेबर रखने थे, तो अगर सी और जी नेबर है तो बेटे सी और जी इकट्ठे होने चाहिए, और जी लेफ्ट ऑफ ए है, दैट मींस यहाँ पे जी रख लूंगा, ये सी होगा और ये ए होगा। बट ये केस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये ए का राइट हो जाएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए? जी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। इसका मतलब बच्चे ये केस वैलिड हो जाएगा, यहाँ पे जी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, जी और सी नेबर हैं, और ये ए का लेफ्ट हो गया बिकॉज ए कहां देख रहा है? इनसाइड। परफेक्ट बच्चे। सो हमें बस ये देखना था इनसाइड आउटसाइड कौन है। सो मेरे को पता है अब यहाँ पे एच आउटसाइड है, यहाँ पे बी आउटसाइड है, यहाँ पे बेटे ये इनसाइड है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट थी बेटे डी फेसेस द सेंटर एंड बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस आउटसाइड। सो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो चार आउटसाइड फेस कर रहे हैं वो एक बी, एक एफ, एक एच और एक ई है। द रेस्ट ऑल दैट मींस हैज टू फेस इनसाइड। ठीक है बच्चे, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली यू कैन कीप शेयरिंग योर व्यूज एंड यू कैन कीप टेलिंग अस, we'll be coming up with more sessions for your response, ठीक है। Thank you so much बच्चे, thank you everybody, thanks to see you all after long, thank you everybody।